We have already started with the revisions, and as you know, I told you that this will be a very quick revision. We are only focusing on the very main point that we can get in the exam as a question. The next chapter, which I have just taken, I made notes for many. So, the next which I have taken for today is first challenges of nation building. And this is a very first chapter from your second book. और इस चैप्टर का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आज हमारा जो पॉलिटिक्स है उसकी शेपिंग में राइट फ्रॉम द वेरी डे व्हेन इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम द पॉलिटिक्स द पॉलिसीज द रिलेशंस व्हिच वी हैड हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस क्योंकि उनको ही हमने आगे लिया या फिर उनमें ही हमने चेंजेस किए. When we got our independence on 15th August 1947, at that time we were completely raw. हम बिल्कुल रॉ मटेरियल थे. कुछ नहीं था हमारे पास में. वी नेवर न्यू कि कैसे होगा. प्लानिंग किया था लेकिन वो प्लान्स कैसे सक्सेसफुल होंगे, देवर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस. तो पंडित नेहरू गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को एड्रेस किया था. ये आपके पेपर में मतलब कि इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन इन द प्रैक्टिकल्स ऑफ अ चाइल्ड. आई स्टिल रिमेंबर. एंड जब हमें आजादी मिली थी तो दैट वाज नॉट ऑन एन इजी टर्म. इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टर्म because India got freedom with partition. So we had three major challenges in front of us. That is social, economical, and political challenge. In political, we needed to establish democracy. यानी कि democracy का मतलब सिर्फ people's government नहीं है. The core value, the everything which comes with the word democracy, वो. In economic field, we needed to shape up a pattern nation which had to ensure development. Yani development is not for one particular section, it is for everyone. And also, we needed to keep a country united yet diverse in the social area. Since we all know India has diverse population in the name of regions, in the name of language, culture, तो तीनों को लेकर हम लोगों को जो है we had to have the challenges. ये social, political and economic challenges हमारे थे. और सबसे पहला जो हमारा चैलेंज था दैट वाज कि जो मुस्लिम लीग्स थे दे हैड एडवांस द टू नेशन थियोरी एंड दे हैड demanded the creation of Pakistan. And it was not easy for Indian leaders or the Indian National Congress leaders to accept partition. लेकिन पार्टीशन को एक्सेप्ट करने के पीछे there were many reasons. अगर नहीं होता तो शायद वो जो वायलेंस था वो शायद और होता. तो देयर वाज व्हाटएवर हैपेंड उस वक्त में द सेकंड नेशन केम आउट फ्रॉम इंडिया दैट वाज पाकिस्तान. और जब पार्टीशन हुआ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई किसको पार्टीशन करें. ये कोई एक रूम तो है नहीं कि हमने बोल दिया वहां का हिस्सा तुम्हारा यहाँ का हिस्सा तुम्हारा. And it was a partition based on the religious lines, communal lines. So the Muslims were present everywhere, the Hindus were present everywhere. तो अब हम लोगों को ये देखना था कि where the belt of Muslim majority ज्यादा है. Secondly, not everyone was interested in creation of Pakistan, like Abdul Ghaffar Khan, who was himself the मतलब वो प्रोविंस को लीड करते थे. He was staunch opposed towards this. फिर भी करना पड़ा. तो ultimately the map, the area which came was Punjab and Bengal, जहां आपके जो मतलब कि मुस्लिम जो थे
उनको दिया गया, बट फिर वहां हिंदूज भी ज्यादा थे। अब क्या किया जाए, जहां हिंदूज कम है वो माइनॉरिटी, जहां मुस्लिम्स कम है वो माइनॉरिटीज। तो ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ दीज जो है, दैट वाज अ वेरी बिग डील फॉर अस। एंड फिर जब पार्टीशन हुआ, एग्जैक्टली ये तो पार्टीशन करने का तरीका था। जब प्रैक्टिकली पार्टीशन हुआ तो देयर वाज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर वाज जस्ट एन अनाउंसमेंट, विद इन आवर्स पीपल हैड टू लीव देयर विलेजेस, देयर एरियाज, दे हैड टू शिफ्ट। उन्हें खुद नहीं पता होता था कि वो जिस जमीन पर खड़े हैं राइट नाउ, वेदर इट इज कमिंग अंडर इंडिया और इट इज कमिंग अंडर पाकिस्तान। There was no clarity. It was not a time of internet, or it was not a time of instant messaging. And number of people were displaced from one area to another, which also resulted in violence, rape, murder, forced conversion, and many more. बहुत सारी चीजें आपकी उसके साथ हुई थी, जो पार्टीशन का एक सबसे कड़वा सच है। तो अब ऐसे में कैसे आप जो हो एक मतलब कि इंडिया को जो हो, यू आर गोइंग टू गिव डेमोक्रेसी, जहां लोग अभी भी देवर लिविंग अंडर फियर। एंड ऑन द अदर हैंड, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ national movement, Mahatma Gandhi, was assassinated on 30th Jan 1948. And this was when he was, जब हमारा मतलब कि when India got freedom, he was not at रेड फोर्ट। वो रेड फोर्ट में बाकी लोग जहां खुशियां मना रहे थे वो नहीं थे वहां पर। ही वॉज इन कोलकाता वेयर देयर वॉज वायलेंस, वेयर ही वॉज एडवोकेटिंग पीस। एंड मेनी ऑफ द पीपल हु बिलीव दैट देयर वॉज सम discrepancy that led to his assassination. तो ये एक और प्रॉब्लम था, इवन दो दैट वाज आपकी बुक में है, दिस इज गिवन इन योर बुक, कि महात्मा गांधी की असैसिनेशन वाज इटसेल्फ अ शॉक, लेकिन उसके बाद अब्रप्टली जो वायलेंस जो था वो खत्म हो गया। एंड देन व्हाट टू डू विद दोस प्रिंसली स्टेट्स जो कि ना इंडिया के हिस्सा थे ना पाकिस्तान के हिस्सा थे। हाउ टू, उनको कैसे लेकर आए अपने अंदर, बिकॉज ब्रिटिश हैड लेफ्ट दिस कंप्लीट डिसीजन ऑन द प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि उनको तो उनसे पैटर्न वो मिल रहा था, पेट्रन मिलता, वो उनके पेट्रन्स थे वो लोग। तो दे डिड नॉट गिव एनी इंस्ट्रक्शन। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो छोटे छोटे से दे केम अंडर इंडिया। लाइक गुजरात आपका जो था उस वक्त में, उसके उसमें मोर देन 500 छोटे स्टेट्स थे, बट दैट confiscated with India, लेकिन sorry, that annexed with India. Then there were areas like Kashmir, हैदराबाद, मणिपुर, ये ऐसे एरियाज थे, जूनागढ़, और इनको इंडिया के अंदर लाना अपने आप में एक बहुत, और इसमें आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, रोल ऑफ सरदार पटेल इन इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट। He is called as the Iron Man. He is called as the man behind the integration of India. और ये आपके जो रेफरेंस मटेरियल है उसके अंदर भी स्पेशल क्वेश्चन था। तो इट वाज दैट कि अलग अलग एरियाज के अंदर ही हैड, मतलब कि उन्होंने जो है डिप्लोमेटिकली ही हैड नेगोशिएटेड विद डिफरेंट गवर्नमेंट्स, लाइक विद हरि सिंह देयर वाज, दैट वाज ड्यू टू द इन्फिल्ट्रेशन व्हिच हैपेंड इन 1947 इटसेल्फ। हमें आजादी मिली उसके बाद पाकिस्तान जो है इट हैड एंटर्ड इनटू आवर सम ऑफ द एरियाज उन्होंने। एंड वो जो एरिया था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो रह गया। लेकिन उस वक्त में राजा हरि सिंह हैड टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एंड जम्मू कश्मीर विद स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स केम विद इंडिया। विद मणिपुर देयर वाज वन मोर प्रॉब्लम, वहां के जो बोधरा थे वो अलग थे, उनका अलग था। बट मणिपुर हैड मतलब कि दे अग्रीड, उनके साथ हुआ। हैदराबाद के अंदर निजाम वाज वेरी, मतलब कि ही वाज वेरी एट्रोशियस, और वहां के जो लोग थे जो निजाम के, दे यूज टू टॉर्चर द कॉमन पीपल, द फार्मर्स, द पीजेंट्स, एंड
इंडिया जो है उसने रेस्क्यू करने के लिए इट हैड एन आर्मी रेबल, जिसकी वजह से हैदराबाद आल्सो बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। जूनागढ़ या फिर ट्रेवेनकोर जो है, ट्रेवेनकोर तो बाद में आ गया था, जूनागढ़ के अंदर देयर वाज प्लेबिसाइट, मतलब एन ओपन वोट वाज देयर एंड पीपल वोटेड फॉर इंडिया। दस वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे विच वर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया या विच वर लेफ्ट, दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कुछ हमने जो है डेमोक्रेसी हमने सेट करने के लिए वी एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी दैट वाज ऑलरेडी टेकन ड्यूरिंग द वेरी फर्स्ट 1930s में ही सोचा गया था कि इंडिया वुड बी अडॉप्टिंग अ डेमोक्रेटिक सेटअप, वी वुड बी हैविंग सम फंडामेंटल राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसके थ्रू जवाहरलाल नेहरू ऑलरेडी हैड एडवोकेटेड सर्टेन प्रिंसिपल्स, महात्मा गांधी के जो प्रिंसिपल्स थे वो था। लेकिन 1950 तक वी डिड नॉट हैव एनीथिंग इन क्लैरिटी, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था 49 में एंड 50 में it was it came into effect. But a setup, democracy, equality, political rights, these were decided. जो हमारा सेकंड था फॉर द इंटीग्रेशन, उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हैड डन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पार्टीशन, तो डेमोक्रेटिक राइट्स के अंदर जो स्पेशल राइट्स थे या इक्वालिटी थी, उससे टू सम एक्सटेंट दोज थिंग्स कुड ऑल्सो बी कवर्ड। अब था हमारे पास में टू शेप अप द नेशन विच वॉज यूनाइटेड येट डाइवर्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिया। एंश्योरिंग डेवलपमेंट के लिए हमारे जो आगे के चैप्टर्स हैं वो हमारा वही है, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हमने रशिया को लेकर लिया था, द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ 5 ईयर प्लान हमने लिया, उसके थ्रू हमने कोशिश की दैट ऑल द एरियाज आर डेवलप वन बाय वन, फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर एट द वेरी फर्स्ट। सो ये थ्री मेजर चैलेंजेस के लिए तीन अलग तरीके के जो स्ट्रेटजीज थे दैट वर मेड। द नेक्स्ट विच केम वाज हाउ टू टेक द स्टेट्स, क्योंकि तब states were either divided on the princely way or the provincial, और provincial states का मतलब था the provinces which comprised of many diversity together। लाइक अगर हम सिंध प्रोविंस कहते हैं तो सिंध आपका आज का जम्मू कश्मीर, कुछ पार्ट आपके पंजाब। अगर हम पंजाब प्रोविंस कहते हैं तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। और आपको पता है पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश का कल्चर कितना डिफरेंट है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। देन इफ यू कम टू द दिस, यहाँ पर अगर आप आते हो महाराष्ट्र में, तो बॉम्बे प्रोविंस, तो बॉम्बे वॉज नॉट द, आज का जो मुंबई है वो बॉम्बे नहीं था। बॉम्बे प्रोविंस मींस गुजरात, विदर्भा, महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। जो कर्नाटका था वो ब्रांचेस में था, उसका कुछ आपका जो है दैट वाज विद द आंध्रा प्रोविंस, दैट इज इन दी मद्रास प्रोविंस। तो दिस वाज अ वेरी बिग टास्क इन फ्रंट ऑफ द लीडर्स। और उसके लिए जो सबसे पहला हमारे यहाँ, मतलब व्हेन द प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट देयर, जब ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस वक्त में, इन आंध्र प्रदेश द आंध्रा विशाल आंध्रा मूवमेंट हैड स्टार्टेड एंड इट वाज स्टार्टेड बाय पोट्टी श्रीरामुलु, जो फास्ट अनटू डेथ, मतलब उन्होंने जो है ऐसा फास्ट रखा था और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी। और डेथ होने से वॉयलेंस हो गया था, डेथ हुई वो नहीं था, डेथ से वॉयलेंस हो गया था। और इस वॉयलेंस की वजह से द लीडर्स हैड टू फर्स्ट ऑफ ऑल कार्व आउट आंध्र प्रदेश आउट ऑफ मद्रास प्रोविंस, क्योंकि मद्रास प्रोविंस एज आई सेड वाज टुडेज तमिलनाडु, पार्ट ऑफ केरला, कर्नाटका, आंध्रा। तो उसको जो है बिल्कुल कार्व किया हुआ है, जब प्रॉपर कोई ऑर्गेनाइजेशन कमिटी नहीं। इसके बाद ऐसा दोबारा ना हो, ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए इन 1953 इटसेल्फ द कमीशन वाज सेट अप, जिसने जो है पूरी स्टडी की हर एक एरिया को, एंड दे रिकमेंडेड 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज, जो हमारा फर्स्ट
स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ था 56 में। जैसे बाइलिंगुअल बॉम्बे, उसको दो स्टेट में किया गया बिकॉज वहां पे एज आई सेड मोस्टली गुजरातीज एंड महाराष्ट्र। एंड बाद में आपका मणिपुर तो मर्जर एग्रीमेंट के थ्रू हुआ था हमारे इंडिया के अंदर। लेटर ऑन स्लोली स्लोली इसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने जो है और आगे काम किया था। देयर वर सो मेनी थिंग्स विच वर टेकन इन दिस। और उसके बाद जो है आज हम लोग जो देख रहे हैं, इनफैक्ट देयर वर बीच बीच में देयर वर सम स्टेट्स विच हैड टू बी अगेन मतलब कि डिवाइडेड, लाइक छत्तीसगढ़ को करना, sorry, मध्य प्रदेश को करना पड़ा था, बिहार को करना पड़ा था, बिहार झारखंड। उत्तर प्रदेश जो आपका पहले था उत्तराखंड, उसमें से आपका आया था, उत्तराखंड उसी के अंदर से निकल के आया था। एंड देन आपका उसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश जो है, नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू आंध्रा एंड तेलंगाना। बट दीज ऑल वर द लेटर डेवलपमेंट्स। बट दैट डेवलपमेंट जो आज हम उस चीज को समझते हैं, दैट स्टार्टेड व्हेन इंडिया अटेन्ड इट्स फ्रीडम। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं कि व्हाट आर द थ्री चैलेंजेस आपके आए हुए हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पर। राइट अ शॉर्ट नोट आपका आया हुआ है पूरा। राइट द रोल ऑफ वल्लभ भाई पटेल इन द एक्सेशन ऑफ स्टेट्स इनटू इंडिया, ये भी आया हुआ है। बहुत मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन सीधे आए हुए हैं। The second chapter which I'm going to take up today in the revision session is from again our uh, first book, and the name is Contemporary Centers of Power. If we remember जो हमने परसों किया था बाइपोलैरिटी, तो बाइपोलैरिटी जब हमारा एंड हुआ, मींस व्हेन द वर्ल्ड वाज सेट टू बी मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू पोल्स, यूएस एंड यूएसएसआर, उसके बाद आपका जो है यूएस केम इनटू अ सुपर पावर। No doubt, US came as a superpower, but it was not a unipolar world. Its dominance definitely was there. लेकिन जब ये सेंटर्स ऑफ पावर्स धीरे धीरे आने लगे, ईयू, आसियान, सार्क, ब्रिक्स। इनफैक्ट अभी मैंने परसों पढ़ा था कि ब्रिक्स के अंदर वन मोर कंट्री हैज बीन एडेड जस्ट डे बिफोर yesterday it was, I don't remember, but a very prominent country has been added to BRICS. एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द एक्रोनिम कि अब एक्रोनिम क्या रहेगा, क्योंकि ब्रिक्स का वैसे एक्रोनिम इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, तो बाद में क्या रहेगा। तो ब्रिक्स आपका जो है, मतलब ब्रिक्स, देन द countries which now are putting more powers, रशिया, चाइना, इंडिया, इजराइल। तो ये हमारा जो है यूएस का जो वो डोमिनेंस था उसको कहीं ना कहीं लिमिट करता, बिकॉज EU, sorry, US जो है आफ्टर एंडिंग ऑफ द बाइपोलैरिटी बिकेम अ सुपर पावर। यूरोप आपका EU को एंड एशिया आपका आसियान को सपोर्ट करता है। सार्क ऑफ कोर्स हैज बीन, मतलब उसका जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़ा कम हो चुका है, एंड ब्रिक्स धीरे धीरे आ रहा है। अभी रिसेंटली देयर वाज एक वो हुआ था जिसमें कहा गया था कि ब्रिक्स विल आल्सो हैव इट्स ओन करेंसी, बट लेटर ऑन इवन यूएस उसने ऑब्जेक्ट किया था, एंड इट इज नॉट सो इजी फॉर टेकिंग एन करेंसी, क्योंकि जो हमारा एरिया है, ईयू तो इसलिए यूरो ले रहा है क्योंकि एरिया आपका सेम है, बट ब्रिक्स एकदम अलग है। ब्राजील आपका उधर है, रशिया आपका उधर है, इंडिया आपका इधर है, so it is very difficult to go with a single currency. This first we are going to do is about EU. And what is EU? और EU से आप इस चैप्टर से 100% क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते, 100%। EU जो है इट वॉज व्हेन कोल्ड वॉर वाला था, दैट वॉज इटसेल्फ द पीरियड व्हेन इंसेप्शन ऑफ EU जो है वो स्टार्ट हो चुका था। इन द ईस्टर्न एरियाज, आपका जो रशियन वाला जो एरिया था, वहां पर ऑलरेडी देयर वर प्रॉब्लम्स क्रॉपिंग अप। तो ईयू आपका जो है वो एस्टैब्लिश हुआ जस्ट
इसी सब चीजों को लेकर जो है एक काउंटर बनाने के लिए। सो फर्स्ट इफ वी सी, तो यूएसएसआर आपका कोलैप्स हुआ था, एंड दैट वाज कंप्लीटली एक मतलब कि एकदम ट्रैक था। देन देयर वर मार्शल प्लान वाज देयर व्हिच गिव द financial help. So they wanted now कि there should be a collective structure. तो ईयू जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया एज अ पॉलिटिकल इन 49, देन इकोनॉमिकल, then in other areas where they were having the mutual cooperation. उनकी जो सबसे बड़ा है कि दे आर हैविंग द म्यूचुअल कोऑपरेशन, एंड द कोऑपरेशन इज थ्रू द इकोनॉमिक फील्ड रादर देन पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या होता है, यू आर ग्रीडी फॉर पावर। सो यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक आपका कोऑपरेशन था, लाइक इफ यू सी OECD वाज एस्टैब्लिश्ड, then Council of Europe was there, then European Economic Community was there, and later on जब आपका USSR कोलैप्स हुआ तो EU आपका जो है फास्टर ट्रैक में आ गया था। अर्लियर ब्रिटिश जो था, ब्रिटेन जो था, दैट वाज पार्ट, बट लेटर ऑन ब्रेक्सिट से इट एग्जिटेड। नाउ EU एज अ नेशन स्टेट, मतलब अगर हम EU बोलते हैं तो इट इज अ complete area of different countries, but one. तो दे हैव कॉमन फॉरेन पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि उनकी अपनी पॉलिसीज नहीं है, दे डेफिनेटली हैव देयर ओन पॉलिसीज, दे डील विद देयर ओन पॉलिसीज आल्सो, बट व्हेन इट कम्स ऑन अ कलेक्टिव ग्राउंड दे गो विद द कॉमन फॉरेन पॉलिसी। Euro is their common currency, yet they have their own currencies, and they have their cooperation on justice and other affairs. They wanted that there should be a constitution which could not be taken. ये आपका assertion and reason में आया था एक बार कि was it, मतलब कि they wanted but they could not, yes, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो जाता है सेट ऑफ राइट, सेट ऑफ डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट ऑफ, तो वो पॉसिबल नहीं था, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बट यस करेंसी वाज देयर। सो नाउ हाउ EU has been influential in the economic, political and military fields across the world. तो इकोनॉमी में अगर हम बोलते हैं तो बिल्कुल जिसको कहते हैं यूरोप जो है, इट हैज मोर इन्फ्लुएंस देन एनी अदर कंट्री, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी टुगेदर। एंड अगर हम US डॉलर को देखते हैं, विच इज द, हमारे लिए दैट इज द यूनिफॉर्म करेंसी एवरीवेयर वी टेक इट, लेकिन जो यूरो है इट हैज गेन मोर प्रोमिनेंस, सो इट इज अ थ्रेट। एंड वर्ल्ड ट्रेड में ओवरऑल US से 3 गुना जाता है, and they have a good influence over other neighbors. Many countries are now wishing to join EU as a member, and important block in WTO also. Since WTO जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ट्रेड को ही डील करता है, तो दे आर वन ऑफ द की प्लेयर्स इन दैट। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो दे हैव 2 permanent members, France and Britain, but now Britain is not there, so France is still there. There are several non-permanent influence, मतलब कि members हैं। so उसकी वजह से US के पॉलिटिक्स में भी अगर US कोई भी डिसीजन लेता है तो दे नीड टू कीप दिस इन माइंड। चाइना को, यूरोप को रखकर उनको देखना पड़ता है। देन व्हेन देयर इज इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, तो दे यूज द कॉमन अफेयर्स, यूज डिप्लोमेटिक वे, यानी कि नेगोशिएट करते हैं। they have been negotiating with China on many areas like environment हो गया, human rights हो गया। इस तरीके से politically they are trying to put the control. Military wise of course they are combined second force, total defense में भी second है spending में, and they have also initiated many areas in space and technology. So in another word अगर हम देखते हैं कि यूरोप एज अ होल, मतलब वेस्टर्न साइड,
not the eastern side. Eastern sides अभी they want. Some of the countries have already become. अगर आप लोग वहाँ के शेंगन वगैरह के बारे में पढ़ते हो तो you will come to know कि there are many countries which हम लोगों ने शायद अभी ध्यान नहीं किया होगा, but they are part of now this area. And this is because mutually they are able to grow together. और फिर म्यूचुअल है तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी मिल जाता है, सेफ्टी भी मिल जाती है। जो हम पहले बाइपोलर कहते थे, तो बाइपोलर जो हुआ था वर्ल्ड, उसके पीछे यही था कि जो छोटी कंट्रीज थी दे वांटेड सेफ्टी, एंड दैट आपको जो है इन अलायंस के थ्रू कहीं ना कहीं मिल रहा है। एंड देन दे हैव ऑल्सो देयर अपना जो सोवेरेनिटी है वो भी मेंटेन हो रहा है। दे आर नॉट सपोज टू फॉलो एनी पर्टिकुलर, उनको किसी भी अलायंस को फॉलो नहीं करना पड़ता, दे कैन हैव देयर इंडिपेंडेंट डिसीजंस ऑल्सो। तो इट हैज प्रूवन वेरी सक्सेसफुल। इंटरनली फ्रांस जर्मनी दोनों यूरो के ईयू के मेंबर्स हैं, लेकिन अगर हम देखें तो दे हैड बीन, कई बार देयर हैड बीन डिफरेंसेस ऑल्सो। लाइक डेनमार्क एंड स्वीडन जो थे, उन्होंने मास्ट्रिच ट्रीटी और यूरो को अडॉप्ट करने के लिए रेसिस्ट किया था। ऐसा नहीं है कि देयर हैज बीन एवरीथिंग लाइक हम आपके हैं कौन वाला था कि सब कुछ अच्छा 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 गया था, एवरीवन इज गुड, ऐसा नहीं था। डिफरेंसेस आर देयर। समटाइम्स ब्रिटेन ने सपोर्ट किया था यूएस को, तो समटाइम्स दे अपोज्ड। मतलब they were members of your EU, then also they supported US, at the same time they opposed. तो दैट इज व्हाट मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि उनके इंटरनल पॉलिसीज अपने इंडिविजुअल भी है सोवरेनिटी के लिए एंड एज अ होल भी है, एंड दे आर नॉट बाउंड कि उनको होल वाला करना ही करना है। ड्यू टू द अदर फैक्टर्स लाइक आपका जो है ब्रिटेन अपना उनके जो अपनी मनी वैल्यू उन सबको लेकर ब्रिटेन हैड डिसाइडेड टू एग्जिट फ्रॉम यूरो दिस ईयू, एंड विच वाज कॉल्ड एज ब्रेक्सिट, ब्रिटेन का एग्जिट, राइट। तो द सेकेंड वन, द फर्स्ट वी हैव रेड इज अबाउट ईयू जो अमेरिका को मतलब की टक्कर देते हुए। द सेकेंड इज आसियान। आसियान अगर हम देखते हैं प्रैक्टिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज एशिया थर्ड वर्ल्ड में आता है, योर यूएस कम इन, मतलब कि वो फर्स्ट वर्ल्ड में आता है जहां डेवलपमेंट टुक प्लेस एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। देन आपके जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं सेकेंड वर्ल्ड, एंड ईस्ट जो हमारे एशियन नेशंस हैं इनको जो है आजादी भी बाद में मिली, इंडिपेंडेंस भी बाद में मिला, एंड देयर वर अदर प्रॉब्लम्स लाइक इलिटरेसी, देन मतलब कि पॉपुलेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, सपोर्ट, ऐसे बड़े सारे प्रॉब्लम्स थे। उनके बावजूद ASEAN has become a very prominent organization in the world. ये आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर 67 में हुआ था, when Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand had signed. And if you look at the development, अगर आप इनके डेवलपमेंट को स्टडी करते हो ना, तो you will find Malaysia, Singapore are far developed than any other South Asian countries. Then of course Thailand, then Philippines, फिलीपींस में कुछ इंटरनल इंसर्जेंस की वजह से प्रॉब्लम थी, एंड इंडोनेशिया ऑफ कोर्स। एंड जो बाकी 5 कंट्रीज थी लाइक ब्रुनी, दारुसलम, वियतनाम, लाओ, ये म्यांमार, कंबोडिया, ये लेटर हुए थे। और अगर आप इन सब के हिस्ट्री को पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दैट दे वर प्रेटी बैकवर्ड, एंड टुडे दे आर बेटर देन एनीवन। मतलब even though they are not equivalent, but yes, they pose a threat. तो इनका मेन जो था वो था जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इनके आपस में रहते हैं। अगर आप ऑन द मैप देखोगे तो वियतनाम, लाओ, ये जो मतलब कि कंबोडिया, ये सब पास पास में है, मतलब all are neighbors. So the territorial dispute should not go into an armed confrontation. अपना अपना रह रहे हैं, ठीक है। Then there should be mutual cooperation on development with social growth and cultural development, regional peace,
एंड ऑफ कोर्स दे शुड प्रोवाइड अ फ्री ट्रेड एरिया जहां पर कंट्रीज लाइक यूएस, चाइना, ये सब जो है दे आर एबल टू इन्वेस्ट, और इस तरीके से दे हैव गिवन द प्लेस। और आसियान के अगर हम देखा जाए तो दे हैव थ्री मेन पिलर्स जस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, मतलब उन्होंने यूएन को रखते हुए उन्होंने बनाया है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, जैसे हमारा यूएन सिक्योरिटी आपका यूएनएससी है, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, which are called as three pillars. And if you see at the name itself, it says security community to जो मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन है उनको, इकोनॉमिक एफटीए एंड रीजनल पीस एंड सोशो कल्चरल टुगेदरनेस अपने सोशल कल्चरल को रखते हुए, एंड देयर विजन हैड बीन to encourage negotiation, ending all kinds of conflicts, and establish a single, you can say, nation state. But yes, they wanted उनका भी एक constitution on the grounds of EU, या फिर they should also have a common currency which could not be which could not, because of the, अगर हम लोग उनके वैल्यू देखते हैं मनी की, तो वो बहुत डिफरेंट होता है. So it is very difficult to have adopt a common currency. India signed free trade areas with them. सिंगापुर के साथ हमारा है, थाईलैंड के साथ है, और मलेशिया के साथ है, और अभी इन दिनों में we have also signed many more with other countries also, not only with them but with other countries also. एंड वी हैव सर्टेन, अगर आप देखते हो तो वीजा फ्री के इसमें देखोगे तो मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज हैव गिवन इंडिया एज अ वीजा फ्री जस्ट टू इम्प्रूव देयर टूरिज्म, टू इम्प्रूव देयर रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग मोर बेनिफिट्स इन द म्यूचुअल ग्रोथ द तो ये हमारा जो था सबसे पहला हमारा था फर्स्ट, इट्स यूरो, सॉरी ईयू, सेकंड इज आसियान, देन सार्क एंड ब्रिक्स. राइट नाउ इट हैज बीन ब्रिक्स आपका, इट इज ऑफ कोर्स what we call as a compulsion, an organization of Brazil, Russia, and they are also trying on the same ground mutual cooperation, mutual benefits. They have signed many multilateral and bilateral, मतलब कि साइन करके वो चल रहे हैं. For the past few years, Chinese economy has also grown. पहले चाइना जो था उसने अपना क्लोज डोर पॉलिसी बना रखा था. So closed door के अंदर they were not having any kind of relations with any of the countries outside. But later on, and they उनका जो vision था वो यही था कि they wanted कि it should be from pin to plain, China should have self sufficiency. तो चाइना पहले इतना डेवलप नहीं था. With 78 के बाद it has come, it has मतलब it is said that 40 तक तो it is going to be better than US. और इनका जो मतलब पॉपुलेशन एक तरफ अगर हम कहते हैं लायबिलिटी है, तो उनके लिए वो एसेट भी रहा है. बीइंग ऑन द सेंट्रल लोकेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, दे हैव बीन एबल टू टेक अप दैट एरिया इन द इजी मैनर. एज आई सेड, पहले उनका क्या था कि दे वर मोर ऑन टू सेल्फ सफिशिएंसी. एंड पीपल पब्लिक चाइना विच वॉज अंडर माओ, वो सोवियत मॉडल के अकॉर्डिंग आया था, और अभी भी अगर आप देखते हो तो इट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिस्ट कंट्री. उन्होंने अपना क्या था, शुरू शुरू में तो इन्वेस्ट यूएसएसआर के हेल्प से दे हैड इन्वेस्टेड द कैपिटल, बट बाद में उन्होंने डोमेस्टिक लेवल को लिया था एंड प्रोवाइडेड एवरीथिंग व्हाट अ कंट्री शुड डू. देन when there was, as I said, 78 तक they were closed door policy था उनका. उनके रिलेशंस थे, लेकिन उन्होंने जो ओपन डोर पॉलिसी किया था दैट वाज इन 1978 अंडर डेंग जियाओपिंग. ये लर्न रखना, रेड कलर में जो लिखा हुआ है. एंड जो फोर मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी प्रपोज की थी, दैट वाज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री, दैट वाज बाय जोन लाई. तब से अब तक
China has only increased their power in the world in all the ways. मतलब पहले उन्होंने प्राइवेटाइज भी कर दिया, देन अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डाले. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर दो जोन्स वेयर द ट्रेड इन द फॉरेन करंसी, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, उसको ज्यादा मोमेंटम देता है. The foreign companies are able to invest in those special areas क्योंकि उन areas में करने से they get certain privileges, certain subsidies. और उसके बाद they have become member of WTO and they have been in the influential powers, and it is said that they are going to be equal to US. तो चाइना और जापान का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ने की वजह से यूएस, आसियान एंड रशिया नेग्लेक्टिंग द कंट्रोवर्सीज अमंग देम एंड रेडी टू ट्रेड विद चाइना. नाउ चाइना इज नॉट वन एरिया, it is a power. It is not an area, it is a power. No doubt पिछले कुछ दिनों में चाइना के ऊपर there have been many allegations which we don't know whether true or false. But yes, there have been many allegations, but still China plays a very important role in the economy of the entire world. So now what is our relationship with China? तो हमारा रिलेशन खट्टा मीठा रहा है. Our relations, ये पेपर में आपका आया था 1962 तक इंडिया का रिलेशन कैसा रहा, आपके पेपर में आया हुआ है बोर्ड्स के अंदर. एंड लेटर ऑन कैसा रहा. तो 62 तक पहले तो देयर वर सर्टन बॉर्डर डिस्प्यूट्स, लाइक अरुणाचल प्रदेश में जो अक्साई चिन वाला जो एरिया है वो अरुणाचल वाले में वी हैड. एंड देन इंडिया का उनके साथ में जो है पंचशील अग्रीमेंट था, एंड इट वाज वेरी कॉमन टू से हिंदी चीनी भाई भाई, जो आपके सेकेंड बुक में दिया हुआ है. देयर वाज अ कॉमन वन. बट देन जब हमारा उन्होंने हमारे जो तिब्बत को लिया, ओवरटेक किया, तो इंडिया जो है इट डिड नॉट वांट टू ब्रेक अप दैट पंचशील. लेकिन व्हेन तिब्बतियंस वांटेड refuge, दलाई लामा sought political harbor in India. उस उस वक्त एट दैट टाइम एज अ गुड नेबर हम लोगों ने उनको हार्बर किया था, विच डेंटेड आवर रिलेशंस विद इंडिया एंड मतलब विद चाइना. और उनको लगा था कि इंडिया, चाइना जो था उनको लगा था कि हमने पंचशील अग्रीमेंट को तोड़ दिया. एंड लेटर दे अटैक्ड 1962 में हमें अटैक किया था, विच वाज अ डेंट ऑन अवर पॉलिटिकल ग्राउंड ऑल्सो. इनफैक्ट उनके उस अटैक से जवाहरलाल नेहरू वॉज क्या जो कैबिनेट था उसमें चेंजेस आई थी. मतलब उनके उस चीज से हमारे पूरे पॉलिटिकल फिगर में चेंज आया था. उस वक्त में आई थिंक मिस्टर मेनन वॉज डिफेंस मिनिस्टर, ही हैड टू रिजाइन. एंड जो हमारे मतलब कि कैबिनेट के अंदर फर्स्ट टाइम इट वाज दैट कि देयर वाज अ काइंड ऑफ नो कॉन्फिडेंस. तो हमारा जो रिलेशन था वो अच्छा रहा, फिर थोड़ा बुरा रहा. एंड लेटर ऑन राजीव गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर, ही विजिटेड टू इम्प्रूव दीज रिलेशंस. उसके बाद से वी हैव बीन हैविंग अ वेरी गुड रिलेशंस. जब हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया था, एट दैट टाइम हमारे इकोनॉमी में चाइना का जो रोल था दैट हैज बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. आज अगर हम कहते हैं कि वी आर हैविंग एवरीथिंग इन आवर हाउस, तो दैट गोज टू दैट एरा ओनली. तो उसके बाद हमारे जो है कल्चरल एक्सचेंज का मतलब कि साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, ट्रेड के अंदर सबसे ज्यादा जो है इंक्रीज हुआ था. But of course, there has always been one more point. वो है चाइना का रिलेशन विद पाकिस्तान, विद अदर कंट्रीज. वो हमें जो है इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना दुश्मन का दोस्त दुश्मन हो जाता है. तो अगर वो हमारे दुश्मन से दोस्ती करते हैं तो वो हमारे लिए दुश्मनी हो जाती है. दैट हैज बीन सीन. बट यस, हमारे जो अभी करंट प्राइम जो मतलब कि वो है गवर्नमेंट है, इट ऑल्सो हैज टेकन लॉट्स ऑफ स्टेप्स इन इंक्रीजिंग
अभी रिसेंटली जो है दोनों ने अपने अपने बॉर्डर से जो है जो मतलब कि जो एक थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम थी उसको भी खत्म करने की कोशिश की। इट इज सेड दैट दे आर विथड्रॉइंग द पीपल सो दैट देयर इज पीस। तो दैट इज हमें यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि चाइना एज अ पावर व्हाट इट्स रोल वाज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स को काफी शेप किया था चाइनीज आपके जो थे। पहले क्लोज था, उसके बाद ओपन डोर हुआ था। ओपन डोर पॉलिसी किसने किया था? देन ये वाले जो सारा पेपर में आता है 1962 से पहले हमारा रिलेशन कैसा था, ये आपके पेपर में आ सकता है चाइना वाले से। Now there are two more which are directly मैंने बुक से ही लिया है। इफ यू सी दिस इज फ्रॉम द बुक ओनली। कि छोटे छोटे अभी मतलब कि अगर हम वर्ल्ड प्लेयर्स बोलते हैं पॉलिटिकल कंट्रोल, तो डेफिनेटली सबसे पहला नाम आता है यूएस, फिर ब्रिटेन, यूके, फिर यूरोप यानी कि आपका ईयू, एंड स्लोली स्टेडीली ऑन द ईस्टर्न साइड आसियान जो है इट हैज नाउ इमर्ज्ड। हाँ, आसियान अभी वर्ल्ड में इट इज अपकमिंग। Now people see ASEAN as an entire area, और they want कि they should invest in these areas। और आने वाले टाइम में आई थिंक 2 years down the lane these countries are going to be developed a lot। मतलब हम सोच नहीं सकते ये वहां तक पहुंचेंगे। मलेशिया, सिंगापुर, ऑलरेडी दे आर अहेड, दे आर ऑलरेडी अहेड ऑफ अस। तो आने वाले टाइम में इट मे बी दैट इवन दीज कंट्रीज लाइक वियतनाम और इंडोनेशिया दे आर गोइंग टू डू बेटर। नेक्स्ट हमारा है, इफ वी लुक एट द वर्ल्ड मैप वी हैव जापान, कोरिया, जिनके बारे में हम लोग सुनते रहते हैं। जापान के लिए हम सुनते हैं कि जापान इज 50 years अहेड ऑफ इंडिया। साउथ कोरिया ऑफ कोर्स इट इज इन द मिलिट्री, उसके अंदर इसको बहुत माना जाता है। तो व्हाट इज देयर रोल और व्हाट कैन बी देयर रोल इन द फ्यूचर और इन द प्रेजेंट? तो जापान अभी भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। फिर लुक इनटू मित्सुबिशी या फिर पैनासोनिक, कैनन, सोनी, होंडा, टोयोटो, सुजुकी, ऑल आर जापानीज ब्रांड। उनके बाद सबसे बड़ी क्या है हमारे नाइन्थ में है ये, कि जापान बीइंग एन आइलैंड दे डोंट हैव एनी रिसोर्स। जैसे हमारे पास वी हैव फॉरेस्ट, वी हैव प्लेटू रीजन, वी हैव डेजर्ट्स, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास जितना कुछ है वो इंपोर्ट करते हैं। बट उन्होंने जो है जापान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का एक मेंबर था, एंड दे इन्वेस्टेड मोर इनटू देयर एजुकेशन, हेल्थ। जापानीज को आज भी मोस्ट जापान और भूटान को हैप्पीएस्ट कंट्रीज में माना जाता है। दे हैव सर्टेन वर्क कल्चर्स। उनका अगर आप देखोगे ना इकिगाई द वे, एंड दे आर वेरी लॉन्ग लिविंग ऑल्सो, मतलब बहुत साल रहते हैं। देर आर सो मेनी टेक्निक्स दे हैव अडॉप्टेड, और उसके वजह से दे हैव बीन अपने जो मतलब कि इंटरनल जो ग्रोथ है वो बहुत कर चुके हैं। एंड इट इज द ओनली नेशन एज वी नो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है विच हैड एंड वाज इट इज बट इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द बजट ऑफ यूएन। उसके बावजूद, एंड जापान इट हैज इट्स मतलब कि अलायंस विथ यूएस ऑल्सो। एंड एक चीज है जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का ये पेपर में आया था। द जापानीज पीपल फॉर renounce war as a sovereign right of the nation and threat or use of force as means of setting international disputes। उन्होंने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को ऐड किया है कि they would not be propagating war at any। वो जो है मिलिट्री में कम एक्सपेंड करते हैं। जैसे जर्मनी जो है, अगर हम ईयू कहते हैं तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर है उनका मिलिट्री में, इनका सबसे लीस्ट है, लेकिन फिर भी दे आर मोर डेवलप्ड। लार्जेस्ट मतलब सेवेंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब अगर चाहे इफ दे वांट, हाँ ट्रेड में दे आर मच अहेड ऑफ एनी वन। ऑल दीज कंट्रीज जिनके बारे में हम अब पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी दे इम्पोर्ट फ्रॉम जापान ओनली, all of the countries। The second one is
साउथ कोरिया, जो कि कोरिया का एक हिस्सा है। कोरिया विच इज डिवाइडेड इनटू नॉर्थ एंड साउथ। रिपब्लिक ऑफ कोरिया इज साउथ एंड डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक इज नॉर्थ। ये आपके वन मार्कर क्वेश्चन है, विच वॉज डन ऑन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एंड ड्यूरिंग द 50-53। इनका जो है देयर हैज बीन, अभी भी अगर आप देखोगे ना नॉर्थ और साउथ में, अभी भी वो 36 का आंकड़ा उनका है। But both of them have become the members of UN. That's one of the greatest achievement. South Korea, it's a center of power in Asia. हमारे इंडिया जो है वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ गुड रिलेशंस। सियोल वगैरह में हमारे काफी रिलेशंस हैं। इवन जो इंडियन मतलब कि कई जो आपके समिट्स वगैरह ये वहां पर होता है। And it has rapidly developed into an economic power, and this is because they call it as a miracle on the Han River. रिवर ने उनको हेल्प किया है फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट। उनका मानना है इंडस्ट्रीज जो बाकी चीजें वहां आई थी, इन सब के पीछे जो रिवर का जो हिस्सा है, दैट हैज हेल्प। दैट इज व्हाट दे कॉल मिराकल ऑन द हान रिवर। And right now, its economy is around 11th in the world and military 10th largest. और अगर हम देखते हैं HDI रैंक, तो HDI रैंक आपका बनता है, UNDP बनाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एन ऑर्गन ऑफ UN। ये हमारे 10th स्टैंडर्ड में डेवलपमेंट चैप्टर में था इन इकोनॉमिक्स। तो UN बनाता है आपका, UNDP बनाता है आपका एक HDR report, which evaluates the countries on the basis of per capita income, the education system, the health system, the public facilities that a country gives। इन सब को सम अप करके वो रैंकिंग करता है सभी कंट्रीज को। एंड अराउंड 180 कंट्रीज आर देयर, जिसके अंदर इंडिया स्टैंड्स ऑन 134th एंड 72nd और 73rd में आता है श्रीलंका। एंड साउथ कोरिया आपका जो है दैट कम्स ऑन 18th, यानी कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ये उन्होंने जो है रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीजों पर जो है दे हैव इक्वली गिवन। और साउथ कोरिया में ही आपका सैमसंग, द मेन फोन हमारा एप्पल का टक्कर, एलजी, ह्यूंडई, दे आर देयर। एंड ऑफ कोर्स साउथ कोरिया का जो कैपिटल है देयर, मतलब कि हमारे कई जो है वी आर हैविंग द समिट्स एंड वी हैव बीन कल्चरल एंड कमर्शियल टाइज हमारे बहुत सारे रहे। एंड वी हैव साइन मेनी बायलेटरल एग्रीमेंट्स आल्सो विद देम। तो हमारा जो रिलेशन है विद साउथ कोरिया और जापान, इट हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड ऑन ऑल द फ्रंट्स। दिस इज आई सेड सियोल, the skyline on Han River. That's the capital. Seoul is very famous and we जो मतलब कि इंडियन बिजनेस के अगर हम देखते हैं तो वी हैव मेनी टाई अप्स विद दैम। तो दैट इज हाउ these countries are now coming up as economy। हाँ, ये अपने आप को इकोनॉमिक पावर की तरह पोज नहीं करते हैं, बट यस दे आर स्लोली एंड स्टेडीली कमिंग एज एन इकोनॉमिक पावर। EU ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, आपका आसियान ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। एंड जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विच वी वुड बी डूइंग इन द लेटर, दैट इज आपका कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया। उसमें हम लोग और भी पढ़ सकते हैं, वी वुड कम टू नो। बट अभी जो बहुत मतलब कि यूरोप मतलब कि यूएस को टक्कर देते हुए हैं, तो दीज आर सम ऑफ द कॉन्टेम्पररी पावर्स विच आर देयर। ब्रिक्स ऑफ कोर्स विल बी वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द कमिंग ईयर्स। आने वाले टाइम के अंदर जो है ब्रिक्स भी बहुत ही ज्यादा मोमेंटम पकड़ेगा। सार्क इतना नहीं रहा था सिंस सार्क स्टार्ट हुआ था, इस्लामाबाद में आपका हुआ था इसका बाद में काठमांडू, देन इंडिया के अंदर भी इनके जो है देयर वर सो मेनी
summits हुए थे, but it could not come on to a, it said that South Asian Association of Regional Cooperation. तो हुआ है उनका, लेकिन they have not been very influential since जो सार्क के नेशंस हैं हमारे, सार्क के जो नेशंस हैं हमारे, वो आपस में देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो आपस के ज्यादा है। अगर हम सार्क के लिए बात करते हैं तो सार्क में आपका आता अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, विच बाइंड्स ऑल ऑफ देम। अफगानिस्तान डायरेक्टली तो आपका एशिया के अंदर नहीं आता, लेकिन वो सारे के सारे जो है, तो जो आपस में जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम, this has stopped, or you can say become a barrier in becoming SAARC as a powerful member in the world politics. ये एक बार पेपर में आया था, but now it is not there, but still I have taken up to be on the safer side. जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो इनमें से आधी चीजों को ले लेता है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर्स एंड अदर्स। तो जो हमारा रिलेशन रहा है आपस में with all the countries, like Pakistan and Afghanistan का भी रिलेशन कोई बहुत अच्छा नहीं है, बांग्लादेश रिलेशन with other countries is not very good, so that has influenced their powers, right? And in BRICS, maybe now it is not going to be, because question papers have already been, I think, formed, लेकिन फिर भी on to be on the safer side, I'm adding the new member is Indonesia, right? Even though it may not be now because papers are already, और ये परसों ही बना है, Indonesia has joined BRICS. So I was just thinking on this कि अब इसका नाम क्या होगा, BRICSy, because BRICS is an acronym for Brazil, Russia, India, China and South Africa also बाद में आया था, BRIC पहले था फिर ऐसा आया था, now Indonesia has joined, right? So with this, two chapters today we have done in the easy revision. First is challenges to national nation building, and third one आपका जो है contemporary centers of power.